This fellowship, which remained the only financial lifeline for Buddhist, Christian, Jain, Muslim, Sikh, and Parsi students who are already grossly underrepresented in our university spaces, has been scrapped, citing overlaps with other fellowships. This betrays the ingrained attitude of the RSS BJP against the minorities of India in particular and the idea of public education in general. No longer able to maintain the public universities of India as modern day agraharas, frightened by its diversity and critical thinking, the BJP government is leaving no stone unturned to make higher education inaccessible and unaffordable for the majority of marginalized students of the country. Ambedkar Students Association, which stands for the democratization of every realm of the society, strongly condemns this assault on diversity and accessibility of public universities. The first speaker today to address our protest gathering is Baba Jan, a Mann scholar from the Department of Education. I invite him to address the gathering. Assalamu alaikum, Jai Bhim, friends. Thank you so much for inviting me. We all know, we are all aware how this BJP government, RSS, Manuvadi, Brahmanical drama, how they are creating. Already we have experienced after coming Modi government 2014, we have been witness how this Occupy UGC movement, we like around 100 days we fight against this fascist government for ensuring non-net fellowship for central university. Those like almost 54 universities or 60 universities, they are giving 8,000. They stop. That time we fight back. After 100 days fight, long struggle, they ensure restore. After restoring that fellowship, again they do drama. Earlier there is no restriction for selection of PhD research scholar taking under. They created one UGC Gazette notification 2016. It says 4 scholar for assistant professor, 4 for associate, 6 for associate professor, 8 for professor. Like this kind of seat cut started in a PhD seat intake, and after that when they regularly they step by one by one they creating drama and they stopping intake of research scholar to universities. After they stop MPhil न्यू एजुकेशन पॉलिसी द ड्रामा वी हैव बीन विटनेस. इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें इनकी देखी. जिस तरीके से गवर्नमेंट मनुवादी फांसीवादी जो ताकतें, इनका जो एजेंडा है, ये नहीं चाहते हैं SC ST माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में. आज जिस तरीके से इन लोगों ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने का एक ड्रामा किया है. आप सबको पता है 5 तारीख को UGC नेट का रिजल्ट आता है. अभी तक लिस्ट को पब्लिश नहीं किया. और हम लोग जो मैं मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को अवेल करता हूँ, लास्ट ईयर नवंबर से लेकर हम लोगों को अगस्त तक फेलोशिप नहीं मिली थी. ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने तक हम लोग को फेलोशिप नहीं मिली. और उसके बाद जब प्रोटेस्ट किया और उस पर डिमांड किया तो हम लोग को बाद में 10 महीने बाद हम लोग की फेलोशिप मिली. इस तरीके से और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनको 12 महीने तक फेलोशिप नहीं मिली थी. तो आज हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से मौलाना आज़ाद फेलोशिप को ये बहाना ये दे रहे हैं. जिस तरीके से कॉमन सेंस इन लोगों का जो ड्रामा, इसके पीछे कुछ तर्क नहीं होता है. आज ये कह रहे हैं पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप, जितने 3 स्कॉलरशिप का ये हवाला दे रहे हैं, तीनों स्कॉलरशिप जो है वो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और मैट्रिक, उसके नाम से साफ दिख रहा है. आज जो MNF जो स्कॉलरशिप जो फेलोशिप जो मिलती है वो PhD MPhil करने वालों को मिलती है, लेकिन इसका इस तीनों फेलोशिप से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन एक कॉमन सेंस बनाने के लिए, लोगों को एक मोटिव क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने कहा कि ये 3 फेलोशिप ऑलरेडी माइनॉरिटी स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है. इसका उससे क्या ताल्लुक है पता नहीं, लेकिन इसको ये डिफेंड करने के लिए जो नाजी एरा में हमने देखा पब्लिक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का एक ड्रामा जो चलता आ रहा है, इसे सिमिलरली यहाँ पे भी इनको ट्रोल करने के लिए ऑलरेडी इनको एक फेलोशिप मिल रही है, 3 फेलोशिप मिल रही है, तो एक फेलोशिप खत्म करने का तो क्या होगा. एक कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करें. इस नैरेटिव के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है. और इसका ये 3 फेलोशिप से MNF का कोई ताल्लुक नहीं. MNF जो है वो PhD में मिलती है, इसके अल्टरनेट कुछ नहीं. और NF OBC और किसी भी एक ही स्कीम में JRF में अगर हम लोग इससे पहले
कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। जैसे जिसको फॉर्म फिलअप करते थे उनको मोस्टली लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया था फुलफिल करते थे, और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नेट मैंडेटरी कहा। नेट के बाद आज ये लोग एक नया ड्रामा शुरू किया है कि फिर उसके नेट हार्डली बहुत कम लोग ही क्वालिफाई होते, बहुत कम ही लोगों को सीट मिल पाती थी एमएनएफ में। आज फिर दोबारा ये लोगों को कहा है कि नहीं एमएनएफ खत्म कर देंगे, ये बजट कटौती, इस तरीके से एक प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का एक बाजारीकरण करने की कोशिश करें। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन लोगों ने क्लियरली कहा है हर साल 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को ये लाने की बात कर रहे हैं। अगर 1000 यूनिवर्सिटी इनको लाना है तो कहां से लाएंगे, जब जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहां पे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन रहेंगे तो कौन जाएगा अदानी अंबानी की यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। तो ये लोग का ये मैंडेट है, ये चाहते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करेंगे तभी हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ ये लोग आएंगे। इसलिए हमें इस अभी इमीडिएटली डिमांड करना चाहिए। ये 2022-23 से ये लोग कह रहे हैं कि हम रोक देंगे, जो लिस्ट पब्लिश करना था उसको हमें इंश्योर करवाना है, इस मोमेंटम बनाना है नेशनल लेवल, इसको प्रोटेस्ट बनाना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा कि हम लोग आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। आप जो भी तुगलकशाही फरमान ले आएंगे और बच्चों की जिंदगी को रोड पे लाके छोड़ देंगे, हम इस चीज को मानने वाले नहीं है। अब इस चीज को हमें इंश्योर करना है कि लिस्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश करो। और इसके अलावा ये लोग इसमें 6 कम्युनिटी आती है, ऑलरेडी बता दिया। और इससे किस तरीके से एक जो मॉड्यूलर सेक्शन से जो लोग पढ़ने के लिए आते, सच्चार कमेटी जो 2009 में जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन का शुरू किया था। और आपको सरप्राइज होगा 48% मुस्लिम दे नेवर गो टू मदरसा, दे नेवर गो टू स्कूल, और 52% ओनली। और हायर एजुकेशन में जो परसेंटेज है लेस देन 1% है। अगर लेस देन 1% को अगर आप इस तरीके से अगर फेलोशिप कट कर देंगे तो कहाँ जाएंगे। और उनकी जो एजुकेशन ही अगर नहीं, एजुकेशन से आप डिफाइन करके रखेंगे, सोशो एजुकेशनली डेवलपमेंट कैसा कंट्री को होगा। एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को आप धकेल दे रहे हैं, अंधकार में ढकेल करके आप चाहते हैं डेवलपमेंट होगा, किस मॉडल की बात आप करना चाहते। और एक सीरीज ऑफ अटैक का हमने एक एक्सपीरियंस किया। इससे पहले एक हिजाब को लेकर के पूरे कर्नाटका में बहुत बड़ा ड्रामा चला। और लाइफ लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स है जो 21 प्रोवाइड करता है, और रिलीजियस राइट्स हमें 29-30 के तहत मिलते हैं। इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात करते हैं तो बनाने नहीं देते। वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियां खा के बैठे हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी में हमारा कोई राइट नहीं है जो माइनॉरिटीज का। और माइनॉरिटी मिनिस्टर किसी को बनाते हो, परफेक्ट को बनाते, जो इसके तहत उनका जो एजेंडा आरएसएस का एजेंडा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो लोग होते उनको ले आते हो। इस तरीके से नाम माइनॉरिटी का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम करते। ये अल्टीमेटली इनका जो हिंदू राष्ट्र का एक सपना है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी यूनिवर्सिटी की सूरत नहीं देखी, और ये लोग नहीं चाहते हैं इनकी कैबिनेट में कोई भी एक पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्कॉलर कोई एक बंदा नहीं है, और ये नहीं चाहते कोई पीएचडी करे। और पहले हम लोग इवन एक प्रॉब्लम रहता था, पढ़ लिखेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में कुछ हासिल करें। आज इस नतीजे पे, इस रास्ते पे ले आएंगे, पढ़ लिख करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बर्बाद हो जाएंगे। ये एक नोशन ये लोगों ने स्प्रेड किया है, इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। जब तक हम लोग साथ खड़े नहीं होंगे, एससी एसटी माइनॉरिटीज और ये रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सब एक साथ आएंगे नहीं तो इनके अट्रॉसिटीज का जवाब नहीं दे सकते। और सच्चार कमेटी की एक और शॉकिंग बात मैं आपको शेयर करके मैं रुकता हूँ। उसमें कहा जहां पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपी है और उसकी कंडीशन वर्स है जहां पे अदर रिलीजियस जो लोग लीड कर रहे हैं, तो इस चीज से हमें अंदाजा लग जाएगा कि जो मुस्लिम जो सो कॉल्ड जो माइनॉरिटी मिनिस्टर या माइनॉरिटी जो पर्सन जो लीड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, वहां की जो अवाम की हालत क्या है। तो उनके बन जाने से कुछ हालत वहां ग्रास रूट लेवल पे चेंज नहीं हो रही। तो हमें इस चीज के लिए जागरूक होना है। इस फेलोशिप का एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये फेलोशिप नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा होता, ये मैं भी कुछ और काम कर रहा होता। इसलिए हमें इस चीज को इंश्योर करवाना है और इसके लिए लड़ाई जारी रखनी है। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Thank you. Now I invite Sabarigiri Rajan, the President of Ambedkar Students Association and a research scholar from the Department of English, to address the gathering. Good evening, everyone. JBM. Thank you all for gathering here. So, I just wanted to point out certain things regarding this fellowship. So, MANF, Maulana Azad National Fellowship. This is actually initiated in the year 2009 by the UPA government under the recommendation of Sacha
committee. So this was for the minority students, religious minority.